Okay, so in the last session, we had started with the introduction to the thermodynamic terms, and along with that, we had understood the different types of thermodynamic processes. And 7 important processes we had discussed. They were isothermal, adiabatic, isochoric, isobaric, reversible, irreversible, and cyclic process. एंड सारे प्रोसेसेस की कंडीशन भी हमने देखी थी एंड ऑल दोस थिंग्स आर बेसिक्स एंड you have to really remember them. Now continuing further, the next part, nature of heat and work, modes of energy exchange. When we talk about thermodynamics, the energy exchange can take place only in two ways. जब हम थर्मोडायनामिक्स में किसी भी प्रोसेस की बात करते हैं उसमें द एनर्जी एक्सचेंज कैन टेक प्लेस ओनली इन टू वेज, आइदर एज वर्क और एज हीट. एनर्जी एक्सचेंज कैन आइदर टेक प्लेस एज वर्क और एज हीट ओनली. दो ही तरीके से एक्सचेंज हो सकता है. अब हीट और वर्क में वही एक बहुत बेसिक डिफरेंस है विच यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. What's the difference? Heat is a form of energy which transfers from one body to another due to temperature difference. मतलब कभी भी energy transfer temperature difference के साथ होती है, that is always heat. मतलब for example, if there is a hot body placed in surrounding with a cold body, तो वहां पर जो energy difference या energy transfer हो रहा है, that is due to the difference in the temperature. So that is heat. लेकिन कोई ऑब्जेक्ट को आप मूव करते हो by applying some force and it displaces by some distance d. So that force into displacement is work. मतलब कोई भी और तरह का एनर्जी ट्रांसफर जो होता है apart from temperature difference will always be classified into work. Remember that. Heat जो है that's the form of energy which is transferred due to temperature difference. Rest all forms of energy which is not involving temperature difference will be classified as work. मतलब mechanical energy, electrical energy और कोई भी form of energy consider कर लो, that will have the energy transferred as work only. ठीक है? But since both are the modes of energy exchange, heat and work are equivalent in terms of considering the units. तो यूनिट्स जो है वो एनर्जी का ही रहता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जूल्स ओनली. अस्मी प्लीज पे अटेंशन. तो के अलग अलग यूनिट्स में द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज लीटर एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब ये यूनिट कहां से आया? व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क, वी नो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. एंड प्रेशर की अगर बात करें तो वी नो इट्स फोर्स पर यूनिट एरिया. So in terms of pressure, I can define force as pressure times area. So force into displacement को मैं लिख सकता हूँ pressure times area times displacement. अब area into displacement जो होता है that is nothing but the change in volume. मतलब यहाँ पर pressure times volume जो है, यानी the pressure measured in atmosphere and volume measured in liters is nothing but the work done. And it's the form of energy exchange. That is why energy का obviously SI unit joule होता है. Joule के अलावा calories, liter, atmosphere are some important units. ठीक है, अब इसके इंटर कन्वर्जन्स भी काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे 1 liter atmosphere, if you want to convert into the SI unit, then liter को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा और एटमॉस्फेयर को पास्कल्स में. कन्वर्जन 1 liter is 1 dm cube, so मीटर क्यूब में 10 power -3 हो जाएगा. और पास्कल में एटमॉस्फेयर होता है 1.01325 into 10⁵. पावर्स को अगर आप देखोगे तो इट विल बिकम 100 एंड ये 100 जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 101.325. अप्रॉक्स अगर लेना है 4 डिजिट तक तो 101.3 जूल्स आ जाता है. So that's the conversion. 1 liter atmosphere is 101.3 joules
एंड जूल्स और कैलोरी का रिलेशन, 1 कैलोरी इज 4.184 जूल्स, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर इतना कैलोरीज हो जाएगा 24.22। ठीक है, बाकी 1 जूल इज 10⁷ अर्ब्स, और अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 0.239 अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेशन के लिए 0.24 कैलोरीज यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस आर वेरी कॉमन यूनिट्स व्हिच आर ऑब्वियसली टू बी रिमेंबर्ड। Now coming to the next important part of the chapter, the expression for pressure volume work when a gas expands against constant external pressure. That is, जो surrounding का pressure है P external, that remains same, and under isothermal condition we are now going to express the work in terms of pressure and volume. तो ये जो derivation है, that is basically the work done for the isothermal irreversible process. Isothermal irreversible process. तो नाम से ये तो clear है कि delta T 0 है, and as per irreversible process, अखाड़े का जो एग्जाम्पल दिया था उसमें the P should be much greater, यानी सिस्टम का जो ड्राइविंग फोर्स है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए as compared to the external pressure or the opposing force. ठीक है, तो यहाँ पर in the diagram you can understand this is the system का driving force which is represented by P gas, या सिर्फ P से represent कर सकते हैं, और ये सराउंडिंग का एक्सटर्नल प्रेशर है, दैट इज P external. अब with the condition P greater than P external, obviously the gas molecules inside this container will exert some force onto the piston, and that force will displace the piston by, let's say, a distance d. तो यहाँ पर ये जो displacement है, this is by the distance d. अब obviously जो volume initially था V1, वो डिस्प्लेसमेंट की वजह से चेंज हो जाएगा, एंड नाउ द फाइनल वॉल्यूम इज V2, और उसका जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा V. एंड कंडीशन एज आई हैव डिस्कस्ड, इट्स P एक्सटर्नल लेस देन P ऑफ द गैस, या P ऑफ द गैस जो सिस्टम का प्रेशर है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, नाउ कैन आई से दैट द गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच आर देयर इन द कंटेनर इज डूइंग वर्क बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, and this work is done against the opposing force. So the work done in this process is calculated as the product of opposing force times the displacement of the piston, opposing force into the displacement, that can be represented as F into D. And since the work is done against the external pressure, मतलब opposite direction में है, इसलिए we are taking a negative sign over here. ये ध्यान देना, the negative sign is taken because the work is done by the system against the opposing force, और वो opposing force को हम negative ले रहे हैं because it is against the opposing force. ठीक है, now we know that pressure is equal to force per unit area. So जो opposing force है that will be pressure times area, और वो जो opposing force है that will be related to which pressure? The opposing force will be related to which pressure? It will be the external pressure. So यहाँ पर it will be negative times P external into the area, and area जो है that is the cross section of the container. तो ये जो भी area रहेगा that is A, and into displacement. Now area into displacement is nothing but the change in volume, that is why we get minus P external into delta V. So that's the simple expression for W irreversible under isothermal condition. So irreversible work is done in a single step, and it's calculated against the external pressure which always remains constant. So that is given as minus P external into the change in volume. ठीक है, अब यहाँ पर अगर वॉल्यूम की बात करें तो इफ V2 इज ग्रेटर देन V1, यानी फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब द गैस इज गेटिंग एक्सपांडेड, और उस केस में जो वर्क है that will come out to be negative because delta V will be greater than 0.
This is called as work of expansion, which as per thermodynamic convention is always taken as negative. इसको याद रखने के लिए when याद रखो, work of expansion हमेशा negative होता है. ठीक है. अब मान लो अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, यानी V1 is less than V2, sorry, V2 is less than V1, तो इस केस में डेल्टा V जो है वो लेस देन 0 आ जाएगा, तो W will come out to be positive, and positive हो रहा है इसका मतलब now the gas molecules are getting compressed, so this will be called as the work of compression, and compression work हमेशा thermodynamics में positive लिया जाता है, which can be remembered as WCP. So these are the two sign convention for the work done in thermodynamics. ठीक है, तो ये तो बात हो गई इरिवर्सिबल प्रोसेस की. नाउ कंसिडर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस. अगेन दो चीज है, आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी 0 है, और रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब द सिस्टम का ड्राइविंग फोर्स यानी P इज स्लाइटली ग्रेटर देन द सराउंडिंग का अपोजिंग फोर्स, दैट इज P एक्सटर्नल. मतलब P इज स्लाइटली ग्रेटर देन द P एक्सटर्नल. ठीक है, तो इस केस में आई कैन से द डिफरेंस बिटवीन P एंड P एक्सटर्नल इज वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमल वैल्यू से डिफर करता है, तो उसको हम dP लेते हैं. सो हियर स्मॉल d ऑब्वियसली इंडिकेट्स अ वेरी वेरी स्मॉल चेंज. सो यहां से आई कैन से दैट द एक्सटर्नल प्रेशर is P minus dP, and obviously it is now going to be variable, though by the smaller value, but obviously it's variable. तो पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है ये काफी हद तक स्टेटमेंट में आपको क्लियरली दिया नहीं जाएगा. बट इफ दे हैव गिवन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब W इरिवर्सिबल का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एंड अगर प्रेशर वेरिएबल है then obviously you are going to use this reversible work done का फॉर्मूला. अब इसको डिराइव करने के लिए we know that रिवर्सिबल में हमेशा ग्राफिकली अगर बात करें तो the process takes place in infinite number of steps. मतलब ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, with P1 V1 and final as P2 V2. ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है. तो रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एक ही स्टेप में नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में होता है, तो हर स्टेप में सम अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन बिफोर रीचिंग टू द फाइनल पॉइंट या फाइनल स्टेज. तो यहाँ पर जब पॉइंट्स को आप मैच करोगे तो आपको हमेशा एक कर्व मिलेगा. So always remember a reversible graph always has a curve. Irreversible में कभी भी कर्व नहीं आएगा, it will always be a straight line connecting the points. तो इन दोनों ग्राफ का आगे मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, लेकिन ये छोटा सा पॉइंट हमेशा याद रखना, and it's very logical. For irreversible work which takes place in a single step, there is no graph, it's always a line. बट जो रिवर्सिबल होता है वो इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है, इसलिए हमेशा एक कर्व आता है. क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर हर पॉइंट पे जो वर्क डन है ना, दैट वर्क इज नाउ गिवन एज dW इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू dP. मतलब फॉर एवरी स्टेज the work done is calculated as minus P external into dP. But फर्क क्या है, यहाँ पर जो P external है that is not constant, it is variable. And what is its value now? It's P minus dP. P minus dP. Sorry, ये dV होगा, external pressure into volume. So P minus dP into dV. ठीक है, so now if you open up, you get minus P dV. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dP इंटू dV. अब अगर मैं बात करूं ये प्रोडक्ट का, तो dP इज अ वेरी स्मॉल चेंज एंड dV इज ऑल्सो वेरी स्मॉल चेंज, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल वैल्यू, हेंस वी आर गोइंग टू इग्नोर इट, इट्स नेग्लिजिबल.
तो अब बचा क्या, हर स्टेप पे जो वर्क डन है वो बेसिकली ड्राइविंग फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड इट्स गिवन एज माइनस PdV. Now we know that for an ideal gas, PV is equal to nRT. Yes. तो यहां से ये जो P है that can be written as nRT upon V. So I'm just substituting that relation over here, minus nRT dV by V लिख सकता हूं. ठीक है. Now, in case of reversible process, since the process is carried out in infinite number of steps, at every step some small work is done, जो हम dW से indicate कर रहे हैं. तो अगर पूरे प्रोसेस का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो हम सिंपली सारे स्टेप्स का वर्क डन एड अप करेंगे, and that in mathematics is nothing but can be calculated by integrating. तो सारे स्टेप्स को अगर सम अप करोगे तो बेसिकली इंटीग्रेशन हो जाएगा. तो यहाँ पर जो वर्क डन है रिवर्सिबल प्रोसेस का, that is calculated as integration of dW, which is in turn equal to minus nRT. मोल्स R और T तीनों कांस्टेंट है. आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, जो कंटेनर है उसमें मोल्स भी फिक्स है, R is anyways a constant. तो बचा क्या इंटीग्रेट करने के लिए, dV by V, एंड इनिशियल पॉइंट क्या था, वॉल्यूम V1, और फाइनल पॉइंट क्या है, वॉल्यूम V2. ठीक है. अब सिंपल मैथ है यहाँ पर जो अप्लाई करेंगे. व्हाट इज इंटीग्रेशन dx अपॉन x? इट्स log x to the base e, which is nothing but ln of x. तो इंटीग्रेशन dv by v को हम ln of v लिख लेंगे. नेक्स्ट स्टेप, W in a reversible, which is also called as the maximum work done in a reversible process, is equal to minus nRT ln of V. और यहाँ पर लिमिट्स को अप्लाई करेंगे फ्रॉम V1 to V2. आई थिंक ये बेसिक मैथ सबको आता रहेगा. नहीं आता है तो प्लीज गो टू योर मैथ्स क्लास एंड जस्ट रिवाइज इट. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस देम. एंड देन व्हेन यू अप्लाई द लिमिट्स, इट्स ln of V2 minus ln of V1, जो हम लिख सकते हैं ln of V2 by V1. और फिर ln को log to the base 10 में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1. This is the expression for work done in a reversible process, which is obviously different from the work done in irreversible process. ठीक है. माइनस 2.303 मोल्स इंटू गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर इंटू लॉग ऑफ V2 बाय V1. और सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्स हो जाते हैं. मतलब V2 बाय V1 की जगह अगर प्रेशर के चेंजेस की बात करें तो वी कैन टेक इट एज P1 बाय P2. Either it can be from P1 to P2 or it can be from V1 to V2. That's what is the irreversible process का work done. Is that clear, everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Now graph से कुछ details को समझना है. Just understand this. So let's say I have a graph plotted for pressure versus volume, क्योंकि we are talking about isothermal. तो जो चेंजिंग वेरिएबल्स है वो अपने प्रेशर और वॉल्यूम, और हम वर्क डन भी प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में ही कैलकुलेट कर रहे हैं. दैट इज व्हाई द ग्राफ ऑफ पीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. अब लेट्स कंसिडर इररिवर्सिबल प्रोसेस. सो इन एन इररिवर्सिबल प्रोसेस द वर्क इज डन इन अ सिंगल स्टेप. मेरी लैंग्वेज में बोलता हूं फटाक से वर्क डन हो जाता है. ठीक है. So 55 versus 35 वाला एग्जांपल जो मैंने दिया था, that is basically irreversible. ठीक है. अब irreversible में let's consider that there is expansion which is happening. अब जब expansion होता है, the final volume is, when the gas expands, the final volume is More than initial. more than the initial.
मतलब यहाँ पर अगर ये V2 है तो ये V1 रहेगा बिकॉज फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, तो आई कैन से देयर इज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम फ्रॉम द पॉइंट V1 टू V2 and this increase in the volume will be carried out when there is decrease in the pressure। तो यहाँ पर ये प्रेशर मान लो इनिशियल P1 है और ये P2 है। तो नाउ कैन आई डिफाइन दिस पॉइंट एज P1 V1? Yes, this as P1 V1 and this particular point as P2 V2। चलेगा? Yes, sir. Yes. ठीक है, सिंपल आप एरोस को फॉलो करो वंस अगेन। In the case of expansion, the volume final is greater than the initial, तो V2 ज्यादा है, and this increase in volume will be obtained by the decrease in pressure, that is from P1 to P2। ठीक है, now work done जो होता है graphically, that is always area under the graph। प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम है ना, मतलब मैथमेटिकली अगर ग्राफ से मुझे वर्क डन फाइंड करना है तो आई जस्ट टेक एरिया अंडर द ग्राफ। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब when we talk about irreversible process, the final pressure becomes your P external, because एक बार आपका पिस्टन ऊपर जाएगा तो it will be again attain equilibrium where the अंदर का प्रेशर एंड बाहर का प्रेशर will become equal। तो जो अंदर का प्रेशर वो P2 हो चुका है और वही P2 आपका P external के बराबर है। डू यू अग्री? Yes. ठीक है, तो जो फाइनल प्रेशर का लाइन है उसको लेकर आप वॉल्यूम के डिफरेंस को कंसिडर करो। तो दिस एरिया इज नथिंग बट द वर्क डन in the irreversible process, that is the work of expansion। Am I clear with the graph? Yes, sir. अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट, again I am drawing the graph of pressure versus volume, P versus V, but now I am considering a reversible process and again considering the work done in case of expansion। अगेन मेरा यहाँ पर इनिशियल पॉइंट P1 V1 ही होगा और फाइनल पॉइंट P2 V2 ही होगा, सेम चीज। और यहाँ पर द वॉल्यूम इज बेसिकली गोइंग ऑन इंक्रीजिंग। तो जैसे मैंने बोला था कि इरिवर्सिबल में आपको कभी भी कर्व नहीं आएगा, लाइन आएगा। दैट्स व्हाट यू कैन सी। यहाँ पर लिख लेता हूँ सो दैट यू रिमेम्बर इट। ये लाइन हमेशा रहेगा बिकॉज फाइनल प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, और रिवर्सिबल के केस में हर स्टेप में छोटा छोटा वर्क डन होगा। सो व्हेन यू ऐड ऑन दैट पॉइंट्स यू विल एक्चुअली ऑलवेज गेट अ कर्व। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कर्व आ जाएगा। तो अब ये पूरे कर्व के अंदर द एरिया विल बी इक्वल टू द वर्क डन। दिस इज एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, यहाँ पर कर्व आ रहा है, हर एक स्टेप में वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि इतना पार्ट अगर मैं कंसिडर करूं तो वो इरिवर्सिबल का वर्क डन था, और अगर ये पूरा पार्ट कंसिडर करूं तो वो रिवर्सिबल का है। बराबर, मतलब वर्क डन इन इरिवर्सिबल इज लेसर एज कंपेयर टू वर्क डन इन रिवर्सिबल। डू यू अग्री? ग्राफिकली समझ में आता है इतना? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, और वर्क ऑफ एक्सपांशन एक्चुअली नेगेटिव था, तो जो हम कंपेयर कर रहे हैं ना दैट्स ओनली द मैग्नीट्यूड, नॉट विद द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इज जस्ट कन्वेंशन। हम जो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं मॉड लूंगा। समझा? तो हैव अ लुक एट दिस। दिस 4 ग्राफ्स आर गिवन। ठीक है, ये एक्सपांशन के लिए 2 ग्राफ्स है। दिस इज फॉर इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल जिसमें लाइन आएगा, और रिवर्सिबल जिसमें कर्व आएगा। इतना पॉइंट याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपांशन द वॉल्यूम इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्रेशर,
इसलिए आप एरोस को क्लियरली देख सकते हो। फिर फाइनल प्रेशर को कांस्टेंट रख के जो वॉल्यूम का चेंज है उसका एरिया ले लो, वो आपका वर्क डन हो जाएगा। अब सिमिलरली कंप्रेशन की बात करते हैं। तो कंप्रेशन में इफ दिस इज माय V2 एंड दिस इज V1, ऑब्वियसली V2 इज लेस देन V1। आता है समझ में? कंप्रेशन में V2 इज लेस देन V1, एक्सपांशन में V2 इज ग्रेटर देन V1। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखो द वॉल्यूम इज नाउ इन द रिवर्स डायरेक्शन। यस, so the volume is decreasing with the increase in the pressure। प्रेशर बढ़ रहा है, एरो देखो खाली। अब फाइनल प्रेशर को लेकर एक लाइन बना दो और उस लाइन के अंदर डिफरेंस इन वॉल्यूम का जितना भी एरिया है वो आपका वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, और रिवर्सिबल में आपका ग्राफ चेंज नहीं होगा, खाली फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स रिवर्स हो जाएंगे। दैट्स व्हाट यू कैन ऑब्जर्व। अब अगर कंपेयर करोगे तो दिस एरिया इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रिवर्सिबल। मतलब अब दो कंक्लूजन विच इज ग्राफिकली अंडरस्टूड इज फॉर आइसोथर्मल एक्सपांशन वर्क द रिवर्सिबल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल। यस और नो? मॉड्यूलस इसलिए डाला है बिकॉज ये वर्क ऑफ एक्सपांशन नेगेटिव होता है। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. एंड फॉर आइसोथर्मल वर्क ऑफ कंप्रेशन जो कि पॉजिटिव होता है, यहाँ मॉड्यूलस की जरूरत नहीं है। आप क्लियरली देख सकते हो कि रिवर्सिबल वर्क इज लेसर एज कंपेयर टू द इरिवर्सिबल वर्क। इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन द रिवर्सिबल। ये सिर्फ ग्राफिकली समझ में आता है, अगर फॉर्मूला वाइज देखेंगे तो कभी भी क्लियर नहीं होगा। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड, but graph is the best way to understand these two cases and the comparison of isothermal work and two cases expansion and compression। ठीक है, तो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये चारों ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट। Sir, but then the actual graph should be in the negative quadrant, right? Because the work done is negative. The negative sign is only for the convention, Okay, sir. only for the convention, इसलिए we are only comparing the magnitude। ठीक है, तो अगर कहीं पे वर्क नेगेटिव है तो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड इट्स एक्सपांशन वर्क, अगर वर्क पॉजिटिव दिया है तो इट्स कंप्रेशन वर्क। हम ग्राफ में सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहे हैं। Got it? Yes, sir. And we have already taken that relation ना, कि in case of expansion ये अगर V1 है और ये V2 है तो V2 is greater than V1, we have already considered। खाली उसका जो डिफरेंस है वो नेगेटिव या पॉजिटिव आ सकता है, उसके बेसिस पे वर्क का साइन चेंज हो जाता है। Got it? Yes. Now, explanation of heat and work as path functions। तो पाथ फंक्शन में मैंने आपको बोला था कि दो ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है टू बी रिमेम्बर्ड एज होमवर्क, मतलब हीट एंड वर्क। अब हम यहाँ पर जस्टिफाई करेंगे व्हाई हीट एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन। पहली बात वर्क के लिए करते हैं। नाउ इफ द वर्क इज डन फॉर अ रिवर्सिबल पाथ वर्सेस द इरिवर्सिबल पाथ, वाज इट सेम और डिफरेंट? isothermal reversible or isothermal irreversible, were the work different in the two paths? ये पाथ है ना, रिवर्सिबल पाथ है, ये इरिवर्सिबल पाथ है, क्या वर्क अलग अलग है दोनों में? ग्राफ से कुछ समझ में नहीं आया अभी तक? Is the work done different in reversible and irreversible? हाँ या ना? A simple question is asked। सर Of course yes। ग्राफ से इतना तो क्लियर होता है ना, सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे को भी क्लियर होगा। वर्क डन इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, मैथमेटिकली भी अगर बात करें तो भी डिफरेंट है। -2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। और यहाँ पर हम इसको मैक्सिमम वर्क भी बोलते हैं,
और इरिवर्सिबल के लिए अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इट्स माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। और एक पाथ हम कंसिडर कर लेते हैं वैक्यूम। व्हाट कैन यू कमेंट फॉर द वर्क डन इन वैक्यूम? 0. ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ कोई अपोजिंग फोर्स रहता है क्या वैक्यूम में? देयर इज नो अपोजिंग फोर्स, मतलब बेसिकली यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो हो जाता है, तो वर्क डन जीरो हो जाता है वैक्यूम में। देयर इज नो वर्क डन इन वैक्यूम। तो नाउ यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, तीन अलग पाथ में वर्क डन अलग है, मतलब वर्क इज अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी which depends on the path, hence it is a path function, hence proved। and अब हीट की बात करते हैं, और दो पाथ हम लेते हैं, आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज द हीट कांस्टेंट और चेंजिंग? आइसोथर्मल में हीट चेंज होता है या कांस्टेंट होता है? Constant. So heat is also constant, temperature is also constant. That is an isothermal process according to you, right? Isothermal का फंडा समझा था क्या? Isothermal is a process in which the temperature is constant. अगर कोई ओपन फ्लास्क में केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं और उस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो मैं इसको कोई आइस बात में डाल दूंगा, सो दैट जो भी टेम्परेचर मुझे मेंटेन करना है वो फिक्स हो जाए। लेकिन उसको फिक्स रखने के लिए क्या हीट का एक्सचेंज विद द सराउंडिंग इज इंपॉर्टेंट? शुड द हीट ट्रांसफर बी देयर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग? Yes. Yes, sir. तो उतना तो लॉजिकल है ना कि आइसोथर्मल में हीट चेंज होता है, Q इज नॉट जीरो। बट ए डायबिटिक तो वही प्रोसेस था जहाँ पे हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है, मतलब Q जीरो था। मतलब हीट जो है पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन बाय दिस आई प्रूव दैट हीट इज अ पाथ फंक्शन। ठीक है, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट हीट एंड वर्क व्हाई दे आर पाथ फंक्शंस थ्रू द थर्मोडायनामिक फॉर्मूलाज एंड द प्रोसेसेस। Now coming to the other thermodynamic parameters, थोड़ा उसका understanding in detail. We have internal energy. नाम से समझ में आता है that internal energy is the energy content inside the system. Energy content inside the system. मतलब क्या? Let's consider there is a container which is filled with water. ठीक है, अगर ये वाटर अपने स्टिल स्टेट में है, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज कैन बी एसोसिएटेड विद दिस स्टिल वाटर? पानी ऐसे ही कंटेनर में पड़ा हुआ है, कौन कौन सी एनर्जीज आप सोच सकते हो इसके लिए? यस, एनी थॉट्स टू बी गिवन? दे आर वेलकम। फाइन, सो अगर स्टिल स्टेट में है तो इसका कुछ स्टोर्ड एनर्जी रहेगा, दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इट इज कंटेनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब देयर विल बी केमिकल बॉन्ड्स इन बिटवीन दैट, देयर विल बी केमिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस वाटर। ठीक है, प्लस वाटर के अंदर HO और OH बॉन्ड्स होंगे, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स। वाटर के बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स होंगे, उनकी भी तो एनर्जीज होगी। केमिकल बॉन्डिंग में आपने इतना तो समझा होगा कि ये इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है, इसको कोवेलेंट बोलते हैं, एंड ये इंटरमोलिकुलर है जिसको H बॉन्ड बोलते हैं। तो ये भी तो एनर्जी पोजेस कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस केमिकल एनर्जी बेसिकली इज ड्यू टू द इंट्रा एंड इंटर molecular bonds,
intra and intermolecular bonds. Got it? So इसके अलावा ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, that will also be having some amount or some values, but they will be very small. But अगर एक बड़े स्केल पे बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी एंड द इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स की वजह से जो एनर्जी है, that is the total energy content associated with the substance inside the container. तो जो internal energy है, that is the sum of all the energy possessed by the substance. Substance के अंदर जितने भी forms of energy होती है वो सब को मिलाकर internal energy होता है, ठीक है? And internal energy is basically only calculative when the volume is constant, मतलब in a closed container. क्यों ऐसा? Because open container होगा तो पानी evaporate होने लगेगा, evaporate होने लगेगा तो obviously उसकी energies में भी change आने लगेगा. इसीलिए जो internal energy है, that is the heat content at a constant volume. ठीक है? And this internal energy is represented by delta U. Thermodynamics में we never consider the absolute values. Absolute values क्या होता है? मान लो ये डेल्टा जब लिखता हूं, it is basically the difference of the internal energy final minus internal energy initial. अब अगर मुझे U2 और U1 फाइंड करना है तो I have to calculate all the energies possessed for that particular state. मतलब इनिशियल स्टेट में पोटेंशियल कितना है, इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर की वजह से क्या क्या एनर्जीज है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, ये सारी एनर्जीज अगर मॉलिकुलर लेवल पे बात करें तो उनका सम आपको इंटरनल एनर्जी देगा. बट एज वी टॉक इन थर्मोडायनामिक्स वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात नहीं करते हैं. मतलब ये U1 और U2 बेसिकली कैलकुलेट हो सकता है बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. फाइनली जो डिफरेंस है वो कितना है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट. सो हम थर्मोडायनामिक्स में बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूज फॉर द मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनामिक्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. एब्सोल्यूट वैल्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको डिफाइन भी नहीं करते हैं, हम सिर्फ डेल्टा की बात करते हैं. अगर आपको याद रहेगा तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और CO2 देता है, हम बाजू में डेल्टा H लिखते हैं. तो ये डेल्टा H क्या है? इट इज द डिफरेंस इन एंथैल्पी. हीट कंटेंट है लेकिन इसको एंथैल्पी बोलते हैं, थर्मोडायनामिक पैरामीटर है. इसमें भी बेसिकली हम ओवरऑल डिफरेंस की ही बात करते हैं. और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आता है तो हम बोलते हैं रिएक्शन एक्सो है, और पॉजिटिव आया तो हम बोलेंगे रिएक्शन एंडोथर्मिक है. तो यहाँ पर H2 क्या है, H1 क्या है, हमें उनसे लेना देना नहीं है. हमें डेल्टा H कितना है बस वो ही इंपॉर्टेंटली कैलकुलेट करना होता है. सो दैट्स बेसिकली फॉर द मैक्रोस्कोपिक thermodynamics which we are considering. Understood? Yes, sir. Now coming to the next parameter, heat capacity. Definition तो पता ही रहेगा. Heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of a given substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin. ठीक है? अब there are many substances which have the tendency to absorb the heat, and because of that the temperature increases for that particular substance. अब मान लो मेरे पास ऑयल है और वाटर है और मैं दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट देता हूं. ठीक है? नाउ डू यू नो किसका हीट कैपेसिटी यहां पर ज्यादा होता है? इफ यू हैव एनी आइडिया यू कैन कमेंट. Water has a higher heat capacity. बराबर. Yes. तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं ऑयल में और वाटर में सेम अमाउंट ऑफ हीट देता हूं, ठीक है,
तो ऑयल का जो टेम्परेचर है, ऑयल का पारा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, मतलब द डिफरेंस इन द टेम्परेचर और द राइज इन द टेम्परेचर इज वेरी हाई। बट वाटर जो है ना, वो बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके भी बहुत कम टेम्परेचर राइज करता है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। मतलब हर एक सब्सटेंस का एक हीट कैपेसिटी होता है, एंड दैट इज फिक्स्ड फॉर अ सब्सटेंस एंड डिफर्स फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हीट कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय C and it is equal to the ratio of heat which is given upon the temperature which is getting changed। ठीक है, तो मैंने अगर इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दिया तो मेरा ये तो कांस्टेंट हो गया। अब मैंने बोला कि ऑयल के लिए जो टेम्परेचर राइज है वो काफी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए इसका जो हीट कैपेसिटी है ना वो कम हो जाएगा, बिकॉज C will be inverse to temperature change, right? Yes, ठीक sir. है, तो दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी, मतलब हीट देने पर कितना टेम्परेचर राइज होता है, दैट इज हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, सो द SI यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज गिवन एज जूल पर केल्विन। ऑब्वियस है, हीट अपॉन टेम्परेचर मतलब जूल अपॉन केल्विन। So heat is proportional to the temperature change and that is why Q is equal to C into delta T, या यहाँ से आप देख सकते हो C is equal to Q by delta T. That's what I have written over here, heat change upon temperature change। ठीक है, अब अगर हम amount of substance को define नहीं करते हैं तो वो heat capacity, but if the heat capacity is defined for 1 mole, it's called molar heat capacity and now it is indicated by Cm। and अब जो यूनिट हो जाएगा वो जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा, यानी 18 ग्राम पानी के लिए 1 मोल ऑफ वाटर के लिए जो हीट कैपेसिटी है दैट वुड बी इंडिकेटेड एज Cm। इनफैक्ट अगर वैल्यू आपको ध्यान है तो इट्स 4.184 जूल पर केल्विन पर मोल, यानी 18 ग्राम वाटर में 1 केल्विन का टेम्परेचर रेज करने के लिए इतने हीट की जरूरत होती है। सॉरी इट्स किलो जूल, सॉरी इट्स 4184 जूल या 4.184 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, और वही हीट कैपेसिटी अगर 1 ग्राम के लिए कंसिडर करते हैं तो दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड नाउ द यूनिट विल बी जूल पर केल्विन पर ग्राम। एंड अब यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा NCm इंटू डेल्टा टी और स्पेसिफिकली NCs इंटू डेल्टा टी। इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes. ठीक है, और एक चीज हमने इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव में इन तीनों को क्लासिफाई किया था। हीट कैपेसिटी इन जनरल इज एन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? Intensive. नहीं, हीट कैपेसिटी में अमाउंट डिफाइन ही नहीं कर रहा हूं मैं, 1 मोल, 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम, कितने के लिए भी हो सकता है। हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट जैसे ही मैं मोलार बोल देता हूं तो मेरा अमाउंट फिक्स हो चुका है, स्पेसिफिक बोल देता हूं तो फिक्स हो चुका है। ये दोनों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। मैंने जनरलाइज करके भी बोला था कि जहां पर मोलर या स्पेसिफिक वर्ड आता है वो सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होती है। इट्स क्वाइट लॉजिकल एंड क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, कुछ रटना नहीं है इसमें। एक्सटेंसिव वो होते हैं जो मैटर डिपेंडेंट होते हैं, इंटेंसिव आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटर। जैसे ही मैं 1 मोल 1 ग्राम कर लेता हूं, मैटर इंडिपेंडेंट हो चुका है। नाउ हीट basically is a mode of energy exchange due to the temperature difference. Heat is a mode of energy exchange due to the temperature difference. अब chemical reaction में we have 2 types of heat which is measured. One at a constant volume यानी isochloric process के लिए, and दूसरा at a constant pressure यानी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए।
ठीक है, जो आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब्ड होता है उसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, एंड दैट इज मेजर्ड इन अ डिवाइस कॉल्ड बॉम कैलोरीमीटर। ये मैंने लास्ट सेशन में बताया भी था कि आइसोकोरिक में बॉम कैलोरीमीटर वर्ड आपको हमेशा रिलेटिवली याद रखना है। अब होता क्या है, अब जस्ट ये ध्यान रखो एंड जस्ट लुक एट द डायग्राम। हियर अ स्टील वेसल व्हिच इज कॉल्ड एज द बॉम। जो स्टील वेसल यूज करते हैं उसको बॉम बोलते हैं। इट्स इमर्स्ड इन अ वाटर बाथ एंड द होल डिवाइस इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, and the steel vessel is immersed in water bath to ensure that no heat is lost to the surroundings। जितना भी हीट कंटेंट है अपने सिस्टम का, जो सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, वो सिस्टम के अंदर ही रहना चाहिए, उसका सराउंडिंग्स में लॉस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन एरर आएगा। फिर हमने एक कंबस्टिबल सब्सटेंस रखा एंड दैट इज बर्न्ड इन प्योर डाइऑक्सीजन सप्लाइड इन स्टील बॉम्ब। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इनलेट है और ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है जो सैंपल है जिसको हमने बर्न किया। Now, burning is an exothermic process, so the heat is obviously going to be evolved during the reaction, and this heat which is evolved is transferred to the water around the bomb and its temperature is monitored। मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो हीट यहाँ से निकल रहा है वो वाटर को हीट करेगा और वाटर का टेम्परेचर जितना राइज होगा उतना प्रोपोर्शनेटली वहां पर हीट इवॉल्व हुआ रहेगा। दिस इज हाउ वी मेजर द हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम in a device called bomb calorimeter। Understood? Yes, sir. ठीक है, so here the bomb calorimeter is sealed। so sealed है मतलब substance closed system के अंदर है, इसलिए उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो भी हीट यहाँ पर इवॉल्व हुआ है और जो हमने मेजर किया है, we are measuring it at constant temperature and under these conditions no work is done as the volume changes zero, क्योंकि work done is minus P into dV होता है, और अगर वॉल्यूम का चेंज जीरो होगा तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हीट और वर्क अगर आपको डिफरेंस समझा है तो वर्क क्यों जीरो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। Here the heat is actually generated due to the temperature difference in a closed container at a constant volume। ठीक है, तो आई कैन से टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हुआ है दैट इज कन्वर्टेड टू QV, एंड नाउ द हीट कैपेसिटी हियर कैन बी रिलेटेड एज डेल्टा U इक्वल टू QV एंड इज इक्वल टू M इंटू CV इंटू डेल्टा T। अब ये जो CV है ना, दैट इज द हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, पीछे हमने फॉर्मूला डिराइव किया ना, Q इक्वल टू N इंटू CS इंटू डेल्टा T। अब ये CS अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो उसको आप CV लिख लो, ये हो जाएगा MCV डेल्टा T, और उसी को QV बोल रहे हैं, V मतलब एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, और जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम कोई भी हीट कैलकुलेट करते हैं वो डेल्टा U के बराबर है। इसको भी जस्ट आगे सेशन में मैं डिस्कस करूंगा एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी, ये भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कैन बी डन इन अ कैलोरीमीटर। अब कांस्टेंट प्रेशर पे कोई भी रिएक्शन जो करते हैं दैट्स टेकिंग प्लेस इन एन ओपन कंटेनर, राइट। लेबोरेटरी में जितने भी रिएक्शन आप ओपन कंटेनर में करोगे दे विल बी कैरिड आउट एट द कांस्टेंट एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ तो एक सिंपल सा वेसल ले सकते हो और उस वेसल में जो भी रिएक्शन हो रहा है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं वो एंथैल्पी के बराबर होता है एंड दैट्स QP। तो दो चीजें याद रखनी है, डेल्टा H इज द हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड द डेल्टा U जिसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं दैट्स इक्वल टू द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एंड दोनों का फॉर्मूलाज इज गिवन इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी विच इज इक्वल टू M इंटू CP इंटू डेल्टा T, और यहाँ पर CP जो है वो आपका हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर।
Clear? Any doubt up till here? Yes, any doubt? Yes. Okay. Now, an interesting part, MCQ oriented concepts. Heat capacity is the heat given upon the temperature difference. अब 4 प्रोसेसेस के लिए ये क्या क्या वैल्यूज हो सकता है वो यहाँ पर दिया हुआ है. फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस वी नो डेल्टा टी इज 0. तो अगर फॉर्मूला में डालोगे डेल्टा टी 0 तो हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी. मतलब फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट. ए डायबिटिक में Q 0 हो जाता है तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो हीट कैपेसिटी 0 हो जाता है. तो इसीलिए हम हीट कैपेसिटी की बात आइसोथर्मल और ए डायबिटिक में नहीं करते हैं, बिकॉज दे आर अनडिफाइंड. या तो 0 है या इंफिनिटी है, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. हमने हीट कैपेसिटी किसके लिए मेजर किया? एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर. नाउ यू अंडरस्टूड why only 2 processes are considered? Yes, sir. So here for isobaric process C is equal to Cp and isochoric में C Cv के बराबर हो जाता है. और Cp क्या है? It is dH by dt. Because Cp को अगर लिखना है तो I can write Qp upon delta T ना. और Qp क्या है? डेल्टा H के बराबर, तो डेल्टा H by डेल्टा T. अगर छोटा सा चेंज है तो dH by dt लिख लो, एक ही बात है. सिमिलरली Cv क्या है? हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन द चेंज इन टेम्परेचर, बट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी ही होता है, तो डेल्टा U by डेल्टा T छोटा चेंज है तो du by dt. आर ऑल द 4 formulas clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. So these are direct questions which are asked for MCQs. Heat capacity for different processes. Isothermal infinite, adiabatic 0, not to be marked up. Just remember Q by delta T. You know all the formulas now. Next, Cp and Cv for an ideal gas. The relation is Cp minus Cv equal to R. Now इसके बहुत सारे concepts आप physics में पढ़ने वाले हो, लेकिन उसका डायरेक्ट समरी जो है मैं वो यहाँ पर दे रहा हूं, जो आपको एंट्रेंस के लिए काम आएगा. ठीक है? So Cp minus Cv is equal to the gas constant R. Then we have specific heat या Poisson's ratio. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं ए डायबिटिक प्रोसेस के लिए. वो क्या था? Cp by Cv. Poisson's ratio या specific heat capacity ratio is Cp by Cv. And gamma, as I said in adiabatic also, is always greater than 1. So gamma define कैसे होता है? It's defined as 1 plus 2 by F, where F is called as degree of freedom. Have you done this part in physics up till now? Yes. 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 Perfect. तो ये आपको आता ही रहेगा कि गामा जो है that's 5 by 3. कैसे आता है? Cp जो है मोनो एटॉमिक के लिए 5 by 2 होता है, तो Cv 5R by 2 सॉरी, तो R को डिफरेंस से अगर बात करें तो ये 3R by 2 हो जाएगा, तो जो रेशियो है वो 5 by 3 हो जाता है. समझ में आया? Yes, So sir. gamma is 5 by 3, which is 1.66 for monoatomic gases like the inert gases. So degree of freedom यहाँ पर 3 हो जाता है. फिर diatomic gases like O2, N2, HCl, F is 5 and we have the ratio 7 by 5 equal to 1.4. And अगर triatomic gases है, non-linear like ozone, sulfur dioxide, या linear like nitrous oxide या carbon dioxide, it's 4 by 3 which is equal to 1.33. तो आप देख सकते हो as the atomicity is increased, gamma is decreasing, and hence gamma and atomicity are inversely proportional. So that's the summary to remember. Then since Cp minus Cv is equal to R and Cp by Cv is equal to gamma, तो Cp जो है गामा टाइम्स Cv हो जाएगा, तो गामा Cv माइनस Cv इक्वल टू R, Cv कॉमन गामा माइनस 1 इक्वल टू R,
तो ये फॉर्मूला भी आपने देखा रहेगा, CV इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1, राइट? Yes, sir. Now this part is important. Adiabatic process is a process for which the heat exchange is 0 and the temperature change is non-zero. And adiabatic के लिए PV वाला relation was similar to isothermal, but with a change that adiabatic के लिए PV raised to gamma is a constant. ठीक है? अब यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम को प्रेशर टेम्परेचर के टर्म्स में कन्वर्ट करूं, मतलब एज पर पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर वॉल्यूम मुझे फॉर द फिक्स नंबर ऑफ मोल्स और कांस्टेंट आर के लिए रिलेट करना है, तो आई कैन रिलेट एज टी बाई पी. सो वी रेज टू गामा को आई कैन राइट टी बाई पी रेज टू गामा. यस और नो? So this will be P T raised to gamma upon P raised to gamma. अब मैथमेटिक्स है, P raised to 1 minus gamma, T raised to gamma is a constant. आ गया ये रिलेशन थर्ड वाला. ठीक है? और अगर ये प्रेशर को मुझे वॉल्यूम के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो आई कैन राइट P is proportional to T by V. So I can once again write T by V into V raised to gamma is a constant. तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा T V gamma minus 1 is a constant. आ गया सेकेंड रिलेशन. तो खाली PV raised to gamma equal to constant याद रखो. Second and third relation you need not remember as such, you can just derive it. याद रखो, well and good. ना याद रखो, you can derive it. Fine. Yes. Okay. Now, जैसे आइसोथर्मल में रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल दो पाथ्स थे, वैसे ही एडायाबैटिक में भी मेरे पास रिवर्सिबल एडायाबैटिक प्रोसेस और इरिवर्सिबल एडायाबैटिक प्रोसेस हो सकता है. ठीक है? द फॉर्मूला इन बोथ द केसेस इफ यू ऑब्जर्व, it's P2V2 minus P1V1 upon gamma minus 1. It's same in both the cases. अब यहाँ पर इसका डेरिवेशन आपको सिलेबस के लिए नहीं है और आपको इसका डेरिवेशन याद भी नहीं रखना है. इनफैक्ट यू कैन जस्ट डिराइव द वर्क डन, जैसे हमने आइसोथर्मल के लिए डिराइव किया, एडायाबेटिक के लिए भी डिराइव कर सकते हैं. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो थ्रू दिस डेरिवेशन इन डिटेल थ्रू द अदर सोर्सेज, बट आपको सिलेबस के लिए है नहीं. फाइनली आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूलाज है बस वो ध्यान में रखना है. ठीक है? तो अब यहाँ पर दो द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इज सेम, जो कि आइसोथर्मल में नहीं था. आइसोथर्मल में फॉर्मूला ही अलग था. द फाइनल पॉइंट ऑफ द पाथ विल बी डिफरेंट. मतलब हम शुरू करते हैं मान लो पॉइंट ए से, जो कि अपना इनिशियल स्टेट है. अगर मैं एक ए डायबिटिक रिवर्सिबल पाथ से जा रहा हूं और लेट्स से पॉइंट बी पे यानी फाइनल स्टेट पे पहुंच रहा हूं, तो इरिवर्सिबल पाथ से अगर जाऊंगा ना, तो मैं बी पे कभी नहीं पहुंचूंगा. आई विल नेवर एवर रीच द पॉइंट बी. आई विल ऑलवेज रीच अनदर पॉइंट और अनदर स्टेट विच इज पॉइंट सी. कहने का मतलब ये है कि इफ आई एम स्टार्टिंग विद द इनिशियल पॉइंट ए with the pressure and volume P1 V1, मेरा यहाँ पर जो फाइनल पॉइंट है वो P2 V2 होगा, और मान लो ये रिवर्सिबल में है. अब अगर इरिवर्सिबल से ट्रेवल किया तो आप बी पे नहीं पहुंचोगे, आप बैंगलोर कभी नहीं पहुंचोगे, आप हमेशा चेन्नई पहुंचोगे. ठीक है? मतलब इरिवर्सिबल के लिए जो फाइनल P2 V2 होगा ना, वो हमेशा डिफरेंट ही होगा. इसलिए जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे P2 V2 माइनस P1 V1, despite of starting from the same point, this P2 V2 dash is going to be different for irreversible, and that's why after applying the formula the work done is always going to be different. बस ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है
कि though the formulas for a diabetic reversible and irreversible is same, final point हमेशा different होगा. Just remember this diagram so that you can clearly understand. And hence the work done has to be and will be different. समझा? Yes, sir. ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में एमसीक्यूज में बताऊंगा ये वाला कॉन्सेप्ट. अभी के लिए जस्ट छोड़ दो. ठीक है, बट हीट कैपेसिटी के थ्रू जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पर बताए, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू. और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्ट समरी मैंने आपको बताया है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स फिजिक्स में पढ़ा होगा तो यू कैन वेल रिलेट विद देम. कुछ चीजें फिजिक्स में एड ऑन होगी व्हेन यू डू द काइनेटिक थ्योरी या फिजिक्स वाला थर्मोडायनामिक्स. फाइन. ठीक है, तो केमिस्ट्री में इतना डिटेल है भी नहीं, फिर भी जो समरी मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स में आपको काफी काम आएगा. इसलिए जस्ट रिमेंबर कैसे आया, दैट विल बी डेफिनेटली जस्टिफाइड व्हेन फिजिक्स विल स्टार्ट. और ये ग्राफ भी इसी लास्ट पॉइंट के ऊपर है, मैं बाद में बताऊंगा. Now coming to a short concept of first law. As we said in the start, thermodynamics concepts are based on three important laws: first law, second law, and third law. In fact, there is zeroth law also. लेकिन ये जो zeroth law है ना, ये actually ये तीनों laws आने के बाद derive किया गया था. And this zeroth law basically was introduced as a means to measure the temperature. As a means to measure the temperature. तो पहले zeroth law का एक छोटा सा पार्ट बता देता हूँ. अगेन ये केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री के सिलेबस में है भी नहीं, बट जस्ट हम बात कर लेते हैं. ठीक है, तो zeroth law of thermodynamics. तो zeroth law क्या बोलता है कि अगर तीन सिस्टम्स एक साथ इक्विलिब्रियम में है, मान लो ये तीन सिस्टम है, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी. अब ए और सी अगर इक्विलिब्रियम में है, बी एंड सी अगर इक्विलिब्रियम में है, तो जाहिर सी बात है ए और बी भी इक्विलिब्रियम में होगा. बराबर. मतलब बेसिकली ए ने बी को कुछ दिया, बी ने सी को कुछ दिया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए ने ही सी को दिया, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली. तो zeroth law बहुत बेसिक था, लेकिन वो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट था. कैसे, क्या आप फिजिक्स में और डिटेल में पढ़ोगे. बट इट स्टेट्स दैट व्हेन टू सिस्टम्स आर इक्विलिब्रियम and it is in equilibrium with the third one, then the first and the third system also becomes in equilibrium. If A is in equilibrium with C and B is in equilibrium with C, then A also has to be in equilibrium with C. और अगर ये टेम्परेचर वाला इक्विलिब्रियम है, तो अगर TA और TC सेम है, TB और TC सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है TA और TB भी सेम हो जाएगा. आई बात समझ में? A will be in equilibrium with B. समझा? Yes, sir. Fine. So now coming to the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics is simply nothing but the law of conservation of energy only. Thermodynamics का first law is equal to the law of conservation of energy, which is well known, and it states that energy can neither be created nor be destroyed. It can be just converted from one form to another. Energy can neither be created nor be destroyed. It can be just converted from one form to another. The total energy will always be conserved. And that's the reason universe जो है उसमें जितना भी mass energy conversion है वो पूरा conserved रहता है. And that is the reason we consider universe as an isolated system. तो ये सारे अलग अलग statements है first law के ही. ठीक है. अब फर्स्ट लॉ का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताता हूँ.
Let's say there is a container which is filled with a gas. To this container, I supply some heat. So when I'm supplying the heat, the temperature will increase. The molecules of the gas will absorb the heat energy and its kinetic energy will increase. Due to which this gas molecules will try to push the piston upwards because the gas molecules will start expanding. And क्योंकि ये piston को ऊपर की तरफ push करेगा, I can say the gas molecules are doing some work on the surroundings. हाँ कि नहीं? मैंने कुछ हीट सप्लाई किया मतलब थर्मोडायनामिक्स के कन्वेंशन की वजह से हम प्लस लेते हैं. अब थर्मोडायनामिक्स का साइन कन्वेंशन बहुत ही सिंपल है. थर्मोडायनामिक्स ये बोलता है कि सिस्टम में कोई भी तरह का गेन अगर होगा, कोई भी तरह का गेन, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. सिस्टम में से एनर्जी का कोई भी तरह का लॉस होगा तो वो नेगेटिव. सिस्टम में आया तो पॉजिटिव, सिस्टम से गया तो नेगेटिव. तो मैंने हीट सप्लाई किया है सिस्टम में, तो ऑब्वियसली देयर इज अ हीट गेन्ड बाय द सिस्टम. हेंस आई एम डिस्क्राइबिंग इट एज प्लस क्यू with the sign convention. Now tell me, because there is a heat supplied, what will happen to the internal energy of the gas molecules? Will it increase or decrease? Increase, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ेगी. ठीक है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस डेल्टा यू. प्लस मतलब इंक्रीज हुआ है और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी का पैरामीटर है. ठीक है, और फिर यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स ने काम किया. ठीक है, नाउ इफ दिस गैस मॉलिक्यूल्स आर डूइंग द वर्क against the surroundings, tell me, is the energy lost in this case or gained? अगर सिस्टम कुछ काम करेगा तो क्या वो एनर्जी लूज करके करेगा या गेन करके करेगा? लूज. ऑब्वियसली आपकी बॉडी अगर कुछ काम करती है तो आपका बॉडी कुछ एनर्जी लूज कर रहा है. तो यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स कुछ काम कर रहा है, तो दैट वर्क विच इज डन बाय द सिस्टम विल बी नेगेटिव. Now, as per the first law of thermodynamics, the net energy is conserved. Matlab, can I say the plus Q, which is supplied to the system, is utilized in two ways. One is to increase internal energy. Do you agree? Yes. And secondly, to do work on the surrounding. This increase is considered as positive and work which is done is considered as negative. As per conservation, can I say plus Q and delta U minus W, या plus delta U minus W should be equal? हाँ कि नहीं? बोलो. Yes, sir. ठीक है, तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. दिस is the mathematical expression of first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W. Is that clear? Yes. अब यहाँ पर दो केसेस, इनफैक्ट ये वाला पार्ट देखो. Free expansion and first law of thermodynamics for various processes. तो पहला, अगर मैं वैक्यूम कंसिडर करूं, what was the work done in vacuum? 0. Zero, because there was no opposing force. ठीक है,
when the work done is 0, can we say that the gas is expanding freely because external force कुछ भी present नहीं है. That is why we say that this is a case of free expansion. तो कहीं पे अगर फ्री एक्सपांशन वर्ड आता है, इसका मतलब वैक्यूम का केस कंसिडर किया है और वर्क डन उस केस में 0 है. समझा? The gas is free to expand because कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है. ठीक है, आपके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं रहेगा तो आप फ्री हो जाओगे, और इतने फ्री हो जाओगे कि आपके पास कोई स्ट्रेस ही नहीं रहेगा, है ना. तो दैट इज बेसिकली फ्री रिलैक्सेशन. नेक्स्ट, coming to isothermal process, what's the condition? Quickly. Temperature constant. मतलब डेल्टा टी 0. अब इंटरनल एनर्जी जो है ना वो टेम्परेचर का फंक्शन है. अब आप समझ सकते हो कि जब तक टेम्परेचर फिक्स रहेगा, जो एनर्जीज है सब्सटेंस की वो हमेशा फिक्स ही रहेगी. जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, those energies will start changing, and that is how the internal energy will change. So now do you understand why I said that internal energy is a function of temperature only? हाँ कि नहीं? पानी अगर पड़ा हुआ है और उसमें कोई भी टेम्परेचर का फर्क नहीं आ रहा है, तो उसमें जो एनर्जी पहले थी वही बाद में भी रहेगी, फिक्स रहेगी. अब अगर टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो ऑब्वियसली 25 डिग्री पे जो पानी है और 100 डिग्री पे जो पानी है उनकी इंटरनल एनर्जीज अलग होगी. डू यू एग्री विथ मी? Yes, sir. तो जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा. दैट्स व्हाई जब भी डेल्टा टी 0 लिखो, डेल्टा यू भी 0 हो जाता है. Now, as per the first law of thermodynamics, what was the expression we got? What is the expression? इसको बोलते हैं expression of first law of thermodynamics. So what is the expression? It's delta U equals to Q plus W. Now, as per the condition, delta U 0 हो जाता है. मतलब यहां से Q becomes equal to negative W, or I can write plus Q is equal to minus W. Now, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है that in an isothermal process, the heat which is supplied to the system is used to do work on the surroundings. Plus Q मतलब heat supplied to the system. तो ऑब्वियस है ना, जो भी हीट हम सप्लाई करेंगे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पूरा का पूरा हीट क्या करेगा, वर्क डन में ट्रांसफर हो जाएगा, और वो वर्क डन सिस्टम करेगा सराउंडिंग के ऊपर, इसीलिए नेगेटिव है. समझा ये? Yes. या फिर आई कैन ऑल्सो राइट नेगेटिव Q इज इक्वल टू प्लस W. Now the statement will be the heat which is released from the system is actually due to the work done by the dash on dash. Surrounding on system. तो जब सराउंडिंग काम करेगा सिस्टम पे, सिस्टम की कुछ एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन इंटरनल एनर्जी फिक्स है, तो पूरी की पूरी एनर्जी हीट इवॉल्व में चली जाएगी. समझा? नेक्स्ट था अपना ए डायबिटिक प्रोसेस, और कंडीशन हमने लिखा था Q 0 हो जाता है बट डेल्टा T तो चेंज होता है, डेल्टा T नॉन जीरो. अगेन फर्स्ट लॉ में अप्लाई करो तो डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W में Q को उड़ा दो तो आपको मिलता है प्लस डेल्टा U इक्वल टू प्लस W. मतलब ए डायबिटिक प्रोसेस में द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी इज एंटायरली यूज्ड टू डू वर्क बाय द सराउंडिंग on the system. बहुत ही ऑब्वियस केस है. अगर सराउंडिंग काम कर रहा है सिस्टम पे तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी बिकॉज Q 0 है ना, हीट ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा है.
Similarly, the decrease in internal energy will be due to the work done by the system on the surrounding minus W. ठीक है, अब आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में. Isochoric process is that which is at a constant volume. तो delta V is 0. Delta V 0 होगा तो W for the irreversible process if considered becomes equal to 0. अब वापस delta U equal to Q plus W में W को 0 ले लो तो यहाँ पर delta U Q के बराबर होता है और वही तो मैंने हीट कैपेसिटी के टाइम बताया, hence proved. कि नहीं? Why delta U and QV is equal now is justified from the first law of thermodynamics through the mathematical expression. Delta U is equal to QV. So हमेशा याद रखना, internal energy is equal to the heat measured at constant volume. कान खोल के सुन लो. Internal energy is same as the heat measured at constant volume. Why? Expression के through proved. Isochoric के बाद है isobaric. That's a process with a constant pressure. Delta P is equal to 0. Now यहाँ पर delta U equal to Q plus W में irreversible process के लिए W was minus P external delta V. और ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये तो एनीवेज कांस्टेंट ही रहता है, मतलब यहाँ पर कोई भी टर्म 0 नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आई कैन राइट Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा V. चलेगा? और क्योंकि ये हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर मेजर किया है, यही तो आपका QP है और इसी को लेटर ऑन एक नया पैरामीटर दिया गया था, दैट्स डेल्टा H. तो QP बोलो या डेल्टा H बोलो, इट्स वन एंड द सेम एंड इट्स गिवन एज डेल्टा U इक्वल टू P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम. अंडरस्टूड? तो अब एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में फर्क क्या है? इंटरनल एनर्जी सिर्फ सिस्टम के अंदर क्या एनर्जीज है उसकी बात करता है. जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में उसकी बात नहीं करता है. तो व्हेन वी टेक इनटू कंसिडरेशन द एनर्जी ट्रांसफर along with internal energy, the total energy content or the total heat content is called enthalpy. अगर आप यहां से डेल्टा उड़ा दो तो आपको दिखेगा H is equal to U plus PV. हाँ कि नहीं? मतलब एंथैल्पी बेसिकली इंटरनल एनर्जी है और पीवी वाले वर्क डन की भी बात करता है. तो इंटरनल एनर्जी के साथ जब एनर्जी ट्रांसफर की बात हो तो दैट कलेक्टिवली इज गिवन अ नेम और अ थर्मोडायनामिक पैरामीटर एंथैल्पी. एंथैल्पी. अंडरस्टूड? Yes or no? Yes. Perfect. So for today I'll just stop here. आज के सेशन में एक बार फिर से what all things we have discussed एक quick summary देख लो. So basically we started with heat and work modes of energy exchange. So I said thermodynamics में energy का exchange can happen in two ways only, either due to temperature difference, that's called heat, or due to any other forms except temperature difference, that is called work. क्योंकि दोनों energies है इसलिए दोनों के units same होते हैं. And units में we can have liter atmosphere, joules or calories, the most commonly used units.
Then we derive two expressions. One is for isothermal irreversible process, जहां पर फटाक से change होता है. The work done in that is equal to minus P external delta V, and that's against a constant external pressure. But अगर external pressure variable हुआ और slightly differ किया, तो हर step में छोटा 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 work होगा, और वो सारे work done को add up करेंगे, यानी integrate करोगे, तो आपको reversible work मिलेगा, जो कि W max भी कहलाता है, and that's minus 2.303 nRT log V2 by V1 to the base 10. या फिर अगर प्रेशर के डिफरेंसेस दिए हैं तो P1 और P2 होगा. उसके बाद ये चार ग्राफ्स हमने डिस्कस किए, जिससे ये क्लियर हुआ कि एक्सपांशन में रिवर्सिबल वर्क हमेशा ज्यादा होता है और कंप्रेशन में इरिवर्सिबल वर्क हमेशा ज्यादा होता है. उसके बाद हीट एंड वर्क पाथ फंक्शन क्यों है? 3 अलग पाथ के थ्रू वर्क को जस्टिफाई किया और 2 पाथ्स के थ्रू हीट को जस्टिफाई किया. Why they were path functions. Then internal energy, all the energy content associated with the system is called internal energy. Absolute values हम determine नहीं करते हैं, we just only want the delta U, the final minus initial value. Then heat capacity. अगर हीट कैपेसिटी कोई सब्सटेंस के लिए डिफाइंड नहीं है तो वो एक्सटेंसिव होगा, बट एक मोल के लिए डिफाइंड है, एक ग्राम के लिए डिफाइंड है, तो वो इंटेंसिव होते हैं, एंड दे आर रिटन एज cm and cs रिस्पेक्टिवली. उसके बाद अगर हीट को मेजर किया जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, then that heat at constant volume is nothing but internal energy, which we just also proved through the first law of thermodynamics and given as mcv delta t. और अगर मोल्स दिया हो तो आप NCV डेल्टा टी भी ले सकते हो, डिपेंडिंग कौन से यूनिट में दिया है. अगर आपको जूल पर केल्विन पर किलोग्राम में दिया है या पर ग्राम में दिया है तो आप स्पेसिफिक वाले को कंसिडर करोगे, एंड जूल पर केल्विन पर मोल है तो आप मोलर वाले को कंसिडर करोगे. अकॉर्डिंगली यहाँ पर मास की जगह मोल्स कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब बेसिकली यू आर बैलेंसिंग द यूनिट्स. सिमिलरली जो हीट आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी जो भी ओपन कंटेनर में रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर वो मेजर कर रहे हो तो वो बेसिकली एंथैल्पी के बराबर होता है. QP एंड एंथैल्पी इज वन एंड द सेम. देन हीट कैपेसिटी 4 अलग प्रोसेसेस के लिए देखा. हमने देखा कि आइसोथर्मल और ए डायबिटिक में इनफाइनाइट और जीरो होने की वजह से वहां पर अनडिफाइंड है, इसीलिए हीट कैपेसिटीज वी ओनली टॉक एट 2 प्रोसेसेस, that is at constant pressure and at constant volume. उसके बाद Cp minus Cv का रिलेशन R है. Cp by Cv को गामा बोलते हैं. गामा की वैल्यू एटॉमिसिटी से डिटरमाइन होती है. ये एक एक्सप्रेशन मैथमेटिकली हमने डिराइव किया. फिर ए डायबिटिक के 3 रिलेशंस जो इंटर रिलेट करके आप डिराइव कर सकते हो. ए डायबिटिक और रिवर्सिबल ए डायबिटिक और इरिवर्सिबल ए डायबिटिक का फॉर्मूला वर्क डन का सेम आता है. डेरिवेशन नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताया कि चाहे ये फॉर्मूला सेम हो बट इसका वर्क डन कभी भी सेम नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज इफ यू इवन स्टार्ट विद द सेम पॉइंट, आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के थ्रू बेंगलोर और चेन्नई अलग अलग जगह पहुंचोगे. यू आर नॉट गोइंग टू रीच द final destinations which are same, hence the work done is different in the 2 cases. फिर लास्ट वाला पॉइंट मैं बाद में बताने वाला हूँ, ग्राफ बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेल्टा यू इक्वल टू प्लस डब्ल्यू आया. उसको अलग अलग प्रोसेसेस के लिए जब अप्लाई किया, फाइनली आइसोकोरिक में QV डेल्टा यू के बराबर आया और QP डेल्टा H के बराबर आया. That's it. So I hope the things are clear from today's session about the different thermodynamic parameters and their relations. Fine? Yes. Chalo, so for you, again, go through the synopsis thoroughly. Whatever is being discussed till the first law of thermodynamics, please go through it for the next session. And you can start solving the MCQ of section 1, 2 and 3. थोड़े बहुत नहीं आएंगे, don't worry, just give a try. Even if you are able to solve 60%, you should be fine with it.
ठीक है।